Hello, my dear all. This is the first lesson of your class, but name is last lesson, and you all have to be clear with the summary of the chapter. So I'm going through the sunrise way. First, you have to know about the characters of the lesson. First name is Franz, the narrator of the story, and Franz is a young schoolboy in the French region of Alsace-Lorraine. Alsace-Lorraine is the location of France, and it is a story about 19th century. Now, M. Hamel, the schoolmaster of a small village school in the French region, and Old Hauser is the eldest villager of gathers with the children in H. Hamel's classroom. आपने फ्रेंच के बारे में जाना कि ये स्टूडेंट है. एम हैमेल इज अ टीचर एंड ओल्ड हॉसर एल्डर विलेजर्स में से एक हैं जो कि एम हैमेल के क्लासरूम में थे. और ये जो लोकेशन है, जो जगह का नाम मैंने बताया, एल्सेस लोरेन, ये अभी फ्रांस में है, बट उस समय जर्मन टेरिटरी के अंदर था. नाउ नेक्स्ट इज पर्शियन सोल्जर्स. Forces of the occupying Persian power, which has invaded the French region of the Alsace-Lorraine and they claimed it for the Persia. And Worcester, Worcester, a blacksmith in the villages and the French region of Alsace-Lorraine. A blacksmith था, और as he hurried to school, the narrator French passes Whistler standing in front of the town hall बुलेटिन बोर्ड के पास वो खड़ा था और वो बहुत जल्दीबाजी में जाने के लिए तैयार था, स्कूल जाने के लिए तैयार था. Watcher tells him not to go so fast, and Franz thinks the blacksmith is making fun of him. और ऐसे उन्होंने सोचा कि ये तो जो मेरे साथ बोल रहा है कि नहीं जाइए जल्दी, ये मेरे साथ मस्ती कर रहा है, इसलिए मुझे बोल रहा है कि आप फर्स्ट मत जल्दी से मत जाओ. बट ऐसा था नहीं, कुछ ना कुछ होने वाला था. फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल very late that morning. He was afraid of being scolded because M. Hamel was to question them on participles. First, you have to know about participles. What do you mean by? And hope you have learnt about participle in grammar portion in the 10th chapter. And he did not know the first word about them. Friends को डर था कि मेरे टीचर पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, बट उनके बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ भी ज्ञान नहीं था. He thought of the running away and spending the day out of the doors. The warm, bright day, the chirping birds, and the Persian soldier drilling in the open field back of the sawmill were tempting. But he resisted the temptation and hurried off to school. यह देखा जा रहा था कि उस समय सभी के सभी सोल्जर उसके ऊपर अटैक किया, तो बोले कि वो चारों तरफ से घेरा हुआ था. दैट मीन्स उस समय 19th सेंचुरी में उनके ऊपर इस तरह की दबाव थी सोल्जर से. There was a crowd in front of the bulletin board near the town hall, which the blacksmith asked Franz not to go so fast. He assured the boy that he would get to his school in plenty of time. Usually there was a great bustle when the school began, but that day everything was quiet as Sunday morning. उसे वो जाने से मना किया था, बट वहां जब पहुंचा तो देखा कि इतनी शांत है, इतनी शांत माहौल है, जितनी संडे के मॉर्निंग में जिस तरह से सब कुछ बंद होती है, तो पूरे साइलेंट मोड में रहता है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं रहता है, उसी तरह से वहां पर शांत था. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जब वहां बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ा था तो वह शांत था. नेक्स्ट यू हैव टू लिसन केयरफुली. Through the window, Franz saw his classmates. It is very clear, already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अपने आर्म के अंदर में टेरिबल आयरन रखा हुआ था. रूलर मीन्स स्केल, दैट मीन्स यू आर यूजिंग टू ड्रॉ अ लाइन. अब जो ड्रॉ करने के लिए जो करते हैं स्केल, ये अपने रखा हुआ था. And French opened the door and went in. उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया क्लास में. He blushed and was frightened. M. Hamel very kindly asked him to go to his place. उन्होंने जैसे एंट्री किया, then teacher told clearly that you have to take your place and no more question. उनको चुपचाप बोला कि आप जाइए अपने शांत जगह पे
बैठ जाइए। देन व्हाट हैपेंड, एक्चुअली समथिंग इज कमिंग, कुछ आ रहा है, कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है? फ्रेंड्स नोटिस्ड दैट देयर टीचर हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। उन्होंने देखा कि आज जो हमारे टीचर जो है बहुत सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए हैं। हिज फील्ड शर्ट and the little black silk cap, all embroidered. He wore this only on inspection and prize days. The village people were sitting quietly on the usually empty back benches. Everybody looked sad, and Hausher had brought an old primer. फ्रेंच को आज ऐसा लग रहा था, ऐसा नोटिस किया कि इस तरह से जो कोट पहने, दैट मीन्स इनकी जो वेयरिंग, जो आज जिस तरह से मेकअप में गेटअप में जिस तरह से हैं, जिस तरह से कपड़े पहने हैं, इस तरह से हमारे टीचर तो तभी पहनते हैं जब उन्हें कोई इंस्पेक्शन आती है बाहर से, तब या तो कभी प्राइज डे होती है, कोई प्राइज मिलने वाले रहते हैं टीचर को, तभी इस तरह के ड्रेसअप में रहते हैं। एम हैवल said that it was the last lesson he would give them. उन्होंने कहा, क्लियर कहा कि today I will give some last lesson. Henceforth, only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. उन्होंने क्लियर बोला कि एल्सेस लोरेन में अब से, यानी दैट मीन्स आज के बाद से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाएगी। The new master would come the next day. This was their last lesson of French. He wanted them to be very attentive. बोला कि आज जो है फ्रेंच का लास्ट क्लास होगी, फिर आपको जर्मन क्लास लगने लगेगी। दैट मीन्स आप लोगों की जर्मन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी। बट क्या आप जानते हैं कि यदि फ्रेंच लैंग्वेज में एजुकेशन नहीं मिलती तो फ्रेंच के ऊपर जर्मन स्पीकर क्या होते, उनके ऊपर दबाव डालते और वो पूरे अपना कंट्रोलिंग करने लगता। यह चीज ही यहाँ पर बताया जा रहा है। बट उसे इस तरह से बताया गया कि नेक्स्ट डे आपकी टीचर आएंगे और टीचर आपको जर्मन लैंग्वेज में एजुकेशन देंगे। फ्रेंच फेल्ट सॉरी दैट ही हैड नॉट लर्नड हिज लेसन्स प्रॉपर्ली। The idea that M. Hamel was going made the narrator forgot all about his ruler and how cranky he was. Now Franz understood why M. Hamel had put on his fine Sunday clothes and why the old men of the village were sitting there. They had come to thank the master for his 40 years faithful service and to show their respect for the country that was there no more. अब यहाँ पे इनको ये महसूस होने लगा कि ऐसा क्या बात है कि गांव के लोग बैठे हुए भी हैं और सबके सब शांत बैठे हुए हैं, और आज का जो ड्रेस है वो भी बिल्कुल उनका डिफरेंट है। आखिर या तो उनका सर्विस करने का, वो ये जो अपने टीचिंग लाइन में जो सर्विस दिए इस स्कूल के लिए, ये 40 ईयर्स पूरा हो गया, या कुछ और बातें हैं। हम जानेंगे कि क्या बातें हैं जो कि आज ऐसा है, और इसी से रिलेटेड आपके चैप्टर का नाम भी दिया गया है। Emmanuel asked French to recite, but the stood there silent. The teacher did not scold him. कुछ भी नहीं स्कोल्ड किया जा रहा है, उन्हें खड़ा किया जा रहा है, बट फ्रेंच पूरे साइलेंट है। He confessed that his parents and he, that means teacher, were at fault. Then he talked of the French language, the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. He asked them to guard it among them and never forget it. The language was key of their prison. उन्होंने बताया कि आप जो लैंग्वेज की बात कर रहे हो फ्रेंच को, यदि आप उसे भूल जाओगे तो आप एक दिन क्या हो जाओ, कैद हो जाओगे, क्योंकि आपकी लैंग्वेज ही आपको जेल से बचा सकती है। दैट मीन्स आपके ऊपर जो कोई कब्जा करेगा, दैट मीन्स यू कैन से कि आपके ऊपर जो कोई पावर चलाएगा, रूल चलाएगा, आप उससे बच सकते हो। और वो चीज है, वो की है, आपकी लैंग्वेज है, दैट मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज है। यदि आप उसको छोड़ोगे तो आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। घेर लिया जाएगा मतलब कि ये हुआ कि जर्मन स्पीकर क्या करेंगे, आपके ऊपर रूल करने लगेंगे। देन दे हैड रिलेशन इन ग्रामर एंड राइटिंग। द pigeons quit very low on the roof. French thought if they would make even the pigeons sign in German. All the while M. Hamel was sitting motionless in his chair and gazing at one thing or the other. His sister was packing their trunks in the room above as they had to leave the country next day. आज देखा सर है, बिल्कुल ये लोग जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं
ऐसा प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे लगता है कि यह अब वे लोग सारे के सारे अगले दिन कंट्री छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनको होप है कि कहीं ना कहीं फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम है कि फ्रेंच लैंग्वेज बंद हो जाएगी, फिर फ्रेंच स्पीकर के ऊपर जर्मन स्पीकर क्या करेंगे, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, उनके ऊपर रूल करना शुरू कर देंगे। आफ्टर राइटिंग दे हैड अ लेसन इन हिस्ट्री and then the baby chanted their baby bobo. Even old Hauser was crying. All at once the church clock struck 12 and then the midday prayer. उसी समय चर्च की टाइम हो गई प्रेयर की. At the same moment, the temples of the Persian returning from Deal sounded under the windows. And Hamel stood up. He wanted to speak, but something choked him. वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो बोल नहीं पाया, वो रुक गया क्योंकि आवाज आई. आवाज आने के बाद चारों तरफ से जो अलग अलग आपका जो चर्च है वहां प्रेयर होने लगा और वह रुक गया, पूरे के पूरे रुका हुआ था. देन ही टुक अ पीस ऑफ चॉक. उसके बाद एक चौक का एक छोटा सा टुकड़ा लिया क्लास में ही एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. और वो ब्लैक बोर्ड पर राइट किया. क्या किया? एज ला एज द कुड वेब ला फ्रेंड्स. दैट मीन्स एक होता है कि फ्रेंड्स अमर रहे, दैट मीन्स वे विल लव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अमर रहे. After this he stopped and leaned his head against the wall. Without a word he made a gesture with his hand to indicate that school was dismissed and they might go. उन्होंने जो अपना पोस्टर बनाया इतना लिख करके और उनका बॉडी वॉल पर टिक गया, दैट मीन्स वो लीन हो गया एंड बिना कुछ बोले हुए वो अपना जो पोजीशन बनाया ऐसा बनाया जैसा वो इंडिकेट ये कर रहा था कि आज से स्कूल खत्म हो गई और कुछ बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि फ्रांस वाले पर क्या करेंगे, ये आपको कवर कर लेंगे, कंट्रोल करेंगे. सो इट विल बी बेटर आप अपने लैंग्वेज को मत छोड़ना. थैंक यू सो मच.